صحابی ڈرتے ڈرتے آگے بڑھے، کہتے ہیں اللہ کے رسول اگر ہم سب ہٹ جائیں گے تو آپ کیا کریں گے اکیلے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر سب ہٹ جاؤ گے تو تم دیکھو گے کہ اللہ کے دشمنوں سے محمد اکیلے مقابلہ کر رہا ہے۔ جب ساتھ میں وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھتے کہتے ہیں اللہ کے رسول ہم اللہ کو نہیں دیکھے ایمان لائے، اے اللہ کے رسول ہم جنت کو نہیں دیکھے ایمان لائے، اے اللہ کے رسول اگر آپ کہیں تو اس پہاڑی سے ہم چھلانگ لگا دیں، اے اللہ کے رسول ہم آپ سے چوچرا بھی نہیں پوچھیں۔ اللہ رب العالمین وہیں بدر کے میدان میں بدر کے غازیوں کے اوپر کہتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کان کھول کر سن لو، یہ جتنا 313 اللہ رب العالمین کے لیے لڑنے آئے ہیں، اسلام کے لیے لڑنے آئے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ایک پیغام سنا دو کہ آج کے بعد یہ 313 ایک بھی نیک کام نہ کرے، پھر بھی اللہ رب العالمین انہیں جنت لکھ کر عطا فرمائے۔ یہ بچڑن کا خون ہمارے کپڑوں پہ آ گیا، میرا کپڑا ناپاک ہو گیا۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ خالد تم اسے جانیہ بچڑن دے رہے ہو؟ وہ ایسی سچی توبہ کر کر اللہ رب العالمین سے گئی ہے کہ اس کے توبہ اگر 70 گنہگار عورت کے اوپر ڈال دیا جائے تو اس عورت کے توبہ کے وجہ سے 70 عورت بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جائیں گے۔ حضرت عمر فاروق نے کہا کہ اللہ کے رسول وہ تو زانیہ تھی۔ کہا عمر تم سے زانیہ کہہ رہے ہو؟ وہ ایسی سچی توبہ کر کر مری ہے اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں کہ ویسی توبہ ویسا توبہ اگر کوئی چور کتنا بڑا ڈاکو اگر کر لے تو وہ بھی شخص بغیر حساب کتاب بلکہ ہم سب کے رشد و ہدایت کے لیے اللہ رب العالمین نے دنیا ہماری کے حضرت انبیاء علیہ السلام کو دی۔ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سمندر کے اندر جتنا پانی ہے ان کے بوند کے قطرات سے جاتا ہے۔ درود و سلام کے بے شمار نچار فرمان ہمیں تمام انبیاء اور رسول پر، بالخصوص آخری رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، جن کی وجہ سے ہمیں راہ حق ملا اور زندگی گزارنے کی صحیح و سنت گزارنے کی معلوم۔ حضرات آج اس خطبہ جمعہ کے اندر جو عنوان آپ لوگوں کے سامنے رکھنا ہے کہ دعا کون سنتا ہے؟ انسان اپنی دعا کرنے کے لیے کون کون سے بزرگوں کے پاس جاتا ہے؟
اندر ایسے ایسے بزرگ آئے کہ جو بغیر اولاد ہی کے مر گئے، اور انسان آج ہم مسلمان ہو کر ان کے پاس جاتے ہیں، اور خاص طور پر لوگ تو صرف بیٹا ہی مانگنے جاتے ہیں۔ ہم اتنے بڑے جاہل ہو گئے ہیں کہ اللہ رب العالمین کو صرف بیٹی ہی دینے والا سمجھتے ہیں۔ بیٹا کون دیتا ہے؟ فلاں ولی دیتے۔ پچھلے گزشتہ جمعہ میں ہم نے کہا تھا کہ عرب کے کافروں سے جب اللہ رب العالمین نے کہا کہ اے میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے ذرا یہ پوچھئے کہ تم کھیت کے اندر ایک دانہ ڈالتے ہو، اللہ رب العالمین اسے 100 دانہ بناتا ہے، یہ بنانے والی ذات کون سی ذات ہے؟ تو عرب کے کافر یہی کہتے تھے کہ اے محمد بن عبداللہ، یہ تو اللہ ہی کرتا ہے، اور اے محمد رسول اللہ ان سے یہ پوچھئے کہ تمہارے کھیت کے اندر اناج کو کون پکاتا ہے؟ تو عرب کے کافر یہی کہتے تھے کہ اے محمد بن عبداللہ، کیونکہ محمد رسول اللہ کو مانتے ہی نہیں تھے۔ اگر محمد رسول اللہ اگر مان لیتے تو جھگڑا کس بات کی؟ تو یہی کہتے تھے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد بن عبداللہ، یہ اللہ ہی کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہارے ماؤں کے پیٹ کے اندر بیٹا ہے کہ بیٹی ہے، یہ بنانے والی ذات کون سی ذات ہے؟ تو عرب کے کافر کیا کہتے تھے؟ یہ محمد بن عبداللہ، یہ تو اللہ رب العالمین ہی کرتا ہے۔ تو پھر کہا گیا کہ تم اللہ رب العالمین کو ڈائریکٹ کیوں نہیں پکارتے ہو؟ وہ جو انبیاء علیہ السلام کے قبروں پہ جو جاتے تھے، وہ امتیوں کے قبروں پہ نہیں جاتے تھے، وہ انبیاء علیہ السلام کے قبروں پہ جاتے تھے، کیونکہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیے، جب فاتحانہ داخلہ کیے مکہ کے اندر، تو حرم کے اندر 360 مورتیاں رکھی ہوئی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چھڑی سے ان بتوں کو توڑتے تھے اور کہتے تھے جعل حق وجہ کل باطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا اور باطل کو مٹنا تھا، باطل مٹ گیا۔ تو اسی طریقے سے کہا گیا کہ تم، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہا کہ اے نبی، آپ ان سے یہ ذرا پوچھئے کہ اللہ کو تم ڈائریکٹ کیوں نہیں پکارتے ہو؟ اللہ رب العالمین کو تم سپر پاور کیوں نہیں سمجھتے ہو؟ تو یہی کہتے تھے کہ اللہ سے ان کے تعلقات ہیں، یعنی اللہ رب العالمین ان کے ذریعے ہماری دعا کو سنے گا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ جب میرا بندہ مجھے پکارتا ہے فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں اس کے قریب ہوتا ہوں۔ اور ایک جگہ کہا گیا نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں اپنے بندوں کے سہرگ سے، یہ جو سہرگ ہے اس سے بھی زیادہ قریب۔ اللہ رب العالمین جب سہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے تو اس میں وسیلے کی بات ہے۔ سب سے بڑے اللہ رب العالمین کے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام، کہ اللہ رب العالمین نے انہیں حکم دیا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اے آدم اس درخت کے قریب تم مت جانا۔ بہرحال آدم علیہ السلام اس درخت کے قریب چلے جاتے ہیں اور انہیں جنت سے نکال کر دنیا میں بھیج دیا جاتا ہے۔ آدم علیہ السلام دنیا میں آنے کے بعد صرف اللہ رب العالمین کو پکارتے ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے اللہ، رحمت کی امید تجھی سے لگائے بیٹھے ہیں، اے اللہ اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا، بخشے گا نہیں، تو اے اللہ ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ آدم اور حوا کے ہاتھ ابھی دعا سے نیچے نہیں اترے تھے کہ اللہ
हज़रत नूह अलैहिस्सलाम हुक्म रब्बानी के बगैर सफर कर रहे हैं और जब समुंदर के बीचों बीच पहुंचते हैं तो कश्ती डगमाडोल होने लगी। कश्ती चलाने वाले मल्लाह ने कहा कि यहाँ कोई ऐसा शख्स बैठा जो अपने रब से नाराज है। कौन उठे और कह दे कि मैं नाराज। यूनुस अलैहिस्सलाम उठते हैं, कहते हैं कि मैं अपने रब से नाराज हूं, मेरा रब मुझसे नाराज है। कहा तुम तो इतने हसीनो जमील हो, खूबसूरत हो, तुम कैसे रब से नाराज हो। कश्ती चलाने वाले ने कहा कि कुरान नाज़िल करो, और जब कुरान नाज़िल किया गया तो क्या देखते हैं कि उन्हें यूनुस अलैहिस्सलाम का उसी कुरान नाज़िल में नाम आता है कि वही शख्स है कि जो अल्लाह रब्बुल आलमीन उनसे नाराज है। सब लोगों ने मिलकर उन्हें समुद्र के अंदर फेंक दिया। यहाँ फेंकते हैं, वहां मछली ने लुकमा बना लिया। 3 दिन मछली के पेट में अल्लाह रब्बुल आलमीन को पुकार रहे, यहां तक कि समुद्र का भी अंधेरा है, मछली के पेट का भी अंधेरा है। 3 अंधेरों में यूनुस अलैहिस्सलाम अपने रब को पुकार रहे, कहते हैं ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका, अल्लाह तेरी जात पाक है। इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, अल्लाह अगर तू हमें माफ नहीं करेगा तो अल्लाह हम जालिम हो जाएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है कि अगर मेरा बंदा यूनुस अगर मछली के पेट में मुझसे दुआ नहीं मांगता तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कयामत तक यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट ही में। मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए, फिरौन जालिम बच्चों का कत्ल कर रहा है। मूसा की मां कहती है कि अल्लाह मैं अपने लखते जिगर बेटे को क्या करूं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुक्म दिया कि ए मूसा की मां एक काम करो, संदूक बनाओ और उसी संदूक में मूसा अलैहिस्सलाम को बंद कर समुद्र के अंदर छोड़ दो। मूसा की मां कहती है अल्लाह समुद्र का काम है डुबाना, अल्लाह मैं अपने लखते जिगर बेटे को कैसे समुद्र के हवाले कर दूं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि ए मूसा की मां मैंने जब तुम्हें दिया है तो वो मूसा है, लेकिन जब मैं तुम्हें वापस करूंगा तो मूसा नहीं, मैं तुम्हें कलीमुल्लाह वापस करूंगा। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसी संदूक के अंदर मूसा अलैहिस्सलाम को कलीमुल्लाह बनाया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है कि जो पूरी जिंदगी अल्लाह रब्बुल आलमीन से औलाद की तमन्ना किए, रब्बे हबली मिनस सालिहीन। आज तो हम साल 2 साल 3 साल जाएंगे, नमाज पढ़ेंगे मस्जिद में और इतने बड़े भिखमंगे हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के बारगाह में मांगते हुए शर्म आती है तुम्हें। यहाँ अंबिया अलैहिस्सलाम अपने रब को पुकार रहे हैं। बहरहाल कि जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगा अल्लाह रब्बुल आलमीन से, रब्बे हबली मिनस सालिहीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से हुक्म होता फबश्शरनाहु बिग़ुलामिन हलीम। ए इब्राहीम हम तुम्हें नेक बेटा देंगे, ए इब्राहीम हम तुम्हें बुरदुआर बेटा अता फरमाएंगे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किस तरह से, वहां नमरूद को देखिए कि जो आग जला रखे हैं, आग के शोले आसमान से बातें कर रहे हैं। हवा का फरिश्ता इब्राहीम अगर तुम कहो तो इतनी तेज हवा चलूं कि आग को लेकर जाकर बाहर फेंक दूं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा मैं अपने रब के लिए बता, अगर मैं हक पे हूं तो मेरा रब मेरा डायरेक्ट मदद करेगा, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। बारिश का फरिश्ता आता है, कहता है इब्राहीम अगर तुम हुक्म करो तो इतनी तेज बारिश बरसाऊं कि इस आग को बुझा दूं। यहाँ इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास जिंदा फरिश्तों का वसीला आ रहा है। मुसलमानों आज तो तुम मुर्दों का वसीला लेते हो, तुम तो मुर्दों के पास जाते हो, लेकिन यहाँ जिंदा फरिश्ता खड़ा है। इब्राहीम का हुक्म हो तो पानी बरसा दे, इब्राहीम का हुक्म हो तो हवा चल दे, लेकिन नहीं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहते हैं मैं अपने रब के लिए लड़ रहा, अगर मैं हक पे हूं तो मेरा रब मेरा मदद डायरेक्ट करेगा, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से हुक्म होगा कुलना या नारू कूनी बर्दम व सलामन अला इब्राहीम। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आग को हुक्म दिया कि ये आग तेरा काम है जलाना,
لیکن آج اللہ رب العالمین کا یہ حکم ہے کہ تو ابراہیم کے اوپر وہی آگ ٹھنڈی ہو جائے. اور مفسرین نے لکھا کہ اللہ نے یہ نہیں کہا تھا کہ صرف ٹھنڈی ہو جائے، کہا بردم و سلام علی ابراہیم، ابراہیم کے اوپر وہ آگ سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جائے، ابراہیم کو نقصان نہ پہنچے. خود اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے کہ جنگ بدر کا دن ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ایک دن پہلے، بدر کے میدان سے ایک دن پہلے دعا مانگتے ہیں، کہتے ہیں اللہ تو اپنا وعدہ پورا کر دے، اے اللہ ان کافروں کو ہلاک و برباد کر دے، اے اللہ یہ اسلام کے لیے، یہ مٹھی بھر جماعت کے لیے، اے اللہ یہ اپنے بڑے بڑے زرنیل کو لے کر آ رہے ہیں، اے اللہ تو ان کافروں کو نشت و نابود کر. چنانچہ بدر کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو سجدے میں رکھ دیتے ہیں اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں. اور انہی میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب میں منافقین بھی کھڑے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تم میں سے کسی اور کو ہٹنا ہے تو ہٹ جاؤ. جو منافقین تھے وہ ہٹ گئے. مسلمان کتنا بچے؟ 313. اس میں بوڑھے بچے عورت مرد سب جوڑ کر 313. یہاں تک کہ وہ ہجرتوں کے ستائے ہوئے ہیں. مکہ والے جب بائیکاٹ کر دیا کفار مکہ تو وہ ہجرتوں کے ستائے ہوئے ہیں، بخار کے ستائے ہوئے ہیں. وہ 313 اور 313 کے پاس صرف 2 تلوار، اور ان کافروں کے پاس جو 1000 کافر مسلمانوں سے لڑنے کے لیے آئے تھے ان کے پاس سواریاں ہیں اور بڑے بڑے زرنیل تھے، بڑے بڑے کرنیل تھے، ان سے لڑنے کے لیے آئے، مسلمانوں کو سطح ہستی سے مٹانے کے لیے آئے. یہ سوچ یہ جب دیکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کہتے ہیں تم میں سے کسی اور کو ہٹنا ہے تو ہٹ جاؤ. ایک صحابی ڈرتے ڈرتے آگے بڑھے، کہتے ہیں اللہ کے رسول اگر ہم سب ہٹ جائیں گے تو آپ کیا کریں گے اکیلے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر سب ہٹ جاؤ گے تو تم دیکھو گے کہ اللہ کے دشمنوں سے محمد اکیلے مقابلہ کر رہا ہے. جب ساتھ میں کہتے ہیں اللہ کے رسول ہم اللہ کو نہیں دیکھے ایمان لائے، اے اللہ کے رسول ہم جنت کو نہیں دیکھے ایمان لائے، اے اللہ کے رسول اگر آپ کہیں تو اس پہاڑی سے ہم چھلانگ لگا دیں، اے اللہ کے رسول ہم آپ سے چوچرا بھی نہیں پوچھیں. اللہ رب العالمین وہیں بدر کے میدان میں بدر کے غازیوں کے اوپر کہتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کان کھول کر سن لو، یہ جتنا 313 اللہ رب العالمین کے لیے لڑنے آئے ہیں، اسلام کے لیے لڑنے آئے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ایک پیغام سنا دو کہ آج کے بعد یہ 313 ایک بھی نیک کام نہ کرے، پھر بھی اللہ رب العالمین انہیں جنت لکھ کر عطا فرمائے. یہ صحابی رسول تھے کہ یہ اپنے نبی کو دیکھیے کہ 313 مسلمان لے کر 1000 کفار سے لڑنے آئے جو بڑے بڑے زرنیل تھے، بڑے بڑے کرنیل تھے، لیکن اللہ رب العالمین نے کس قدر ہوتے ہیں. یہ تو نبی ہے، رسول ہے، صحابے کی دعا اللہ رب العالمین نے کس قدر سنی. حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ جو ان کے شوہر نے انہیں ماں کے طریقے سے حرام کر دیا، کہا ہے میری بیوی آج کے بعد تو میری ماں کے طریقے سے حرام ہے. وہ روتی ہے، آتی ہے صحابی رسول کے پاس، حضرت ابوبکر صدیق کے پاس، کہتے ہیں صدیق اکبر ہمارے لیے کوئی راستہ نکالو، ہمارے شوہر نے ہمیں ماں کے طریقے سے حرام کر لیا ہے، میرے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے میں کہاں جاؤں گی. صدیق اکبر جواب دیتے، صحابی رسول جواب دیتے کہ ابھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، ہم کیسے دین میں راستہ نکال سکتے. اے بی بی تم جاؤ اللہ کے رسول کے پاس جاؤ اور اللہ کے رسول سے کہو. بہرحال جب اللہ کے رسول کے پاس آتی کہتی ہے اللہ کے رسول میرے شوہر نے مجھے ماں کے طریقے سے حرام کر لیا ہے، اے اللہ کے رسول میرے لیے کوئی راستہ نکالو. اللہ کے رسول کہتے ہیں بی بی میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اے بی بی جب تک اللہ رب العالمین وہی نازل نہیں کرے گا میں کیسے دین میں راستہ نکال سکتا ہوں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کہہ رہے ہیں کہ میں کیسے دین میں راستہ نکال سکتا ہوں.
आज के पेट भरे मौलवी दीन में जो चाहते हैं, इनके बाप की शरीयत है? किसकी शरीयत है? अल्लाह के रसूल कहते हैं बीबी मेरे पास तेरे लिए कोई रास्ता नहीं है। और ये कहकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत खौला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के कांधा पकड़ कर उठा देते हैं। अभी पर्दा फर्ज नहीं हुआ, कांधा पकड़ कर उठा देते हैं, कहते बीबी मेरे पास तेरे लिए कोई रास्ता नहीं। सामने वो मस्जिद नबी को देखती है और जाती है मस्जिद नबी में वजू करती है और 2 रकात नमाज पढ़ती है और अल्लाह रब्बुल आलमीन से रो रो कर दुआ करती है। कहती है अल्लाह मेरे छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, ए अल्लाह मेरी माँ नहीं है, मेरे बाप नहीं है, ए अल्लाह कौन मेरी परवरिश करेगा, मेरे बच्चों का कौन देखभाल करेगा? अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि हजरत खौला के हाथ अभी दुआ से नीचे नहीं उतरे थे कि जिब्रील अलैहिस्सलाम आयत करीमा लेकर नाजिल हो जाते हैं। क़द समी अल्लाहु क़ौलन लती तुजादिलुका फ़ी ज़ौजिहा व तस्तकी इलल्लाह। ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो औरत अपने शौहर के बारे में आपसे लड़ रही थी, आपसे झगड़ रही थी, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस औरत के लिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस खातून के लिए, पूरे उम्मत इस्लामिया के लिए मसला बदल दिया कि जो इंसान अपने बीवी को अपनी माँ के तरीके से हराम करे, उसे चाहिए कि 60 रोजे रखे या एक गुलाम आजाद करे या 60 मिस्कीन को खाना खिलाए। मसलन जैसे बुखारी शरीफ में रिवायत आती है कि एक इंसान अल्लाह के नबी के पास आता है, कहता है अल्लाह के रसूल मैं हलाको बर्बाद हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा क्या बात है? कहा अल्लाह के रसूल मैं रोजे के हालत में अपने बीवी से मुलाकात कर लिया, हम मिस्त्री कर लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कफारा करो। कहा क्या होगा? कहा एक गुलाम आजाद करो। कहा अल्लाह के रसूल हमारे बाप दादा तो खुद गुलामी करके आए, हम कहां से गुलाम आजाद करें? कहा कि एक काम करो 60 मिस्कीन को खाना दो। कहा अल्लाह के रसूल मेरे घर में खुद खाने के लिए नहीं है, मैं कहां से लाऊं, मैं कहां से 60 मिस्कीन को खाना खिलाऊं? कहा या तो 60 रोजे रखो। कहा अल्लाह के रसूल एक रोजे की ये हालत थी कि बीवी से हम बिस्तर हो गया, अल्लाह के रसूल मैं कहां से 60 रोजे रखूंगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि सहाबा इकराम से कहा कि अपने भाई की मदद करो। कोई 1 खजूर, कोई 4 खजूर, कोई 10 खजूर, हदीस के अल्फाज है कि टोकरी भर गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ले जा अपने कबीले में बांट। कहा अल्लाह के रसूल अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं मेरे कबीले में मुझसे ज्यादा गरीब कोई है ही नहीं। आपने कहा जा खुद खा ले, अपने बीवी बच्चों को खिला दे, नहीं देगा। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन किस कदर हमारी दुआ को सुनता है। इंसान, ये रमजान का महीना आने वाला है, इंसान रोजे के हालत में अगर दुआ मांगता क्यों नहीं उसकी दुआ कबूल होती? इसलिए कि हमारे दिलों के अंदर खोट है, तभी तो अल्लाह दुआ नहीं सुनता है। एक जंग में सहाबा इकराम गए, अगियार की बस्ती है, वहां अपने आबाई वतन को भी छोड़कर सहाबा गए। वहां दुश्मनों के तादाद को जब गिनती की गई, रूम के बादशाह हिरकल से जब जंग लड़ने के लिए सहाबा गए, तो वहां जो दुश्मनों की तादाद जो थी वो 2.5 की 3 लाख थी, शायद 3 लाख दुश्मन हैं और मुसलमान कितने हैं? 30,000। ये सुनकर खालिद इब्न वलीद ने कहा, साथियों ने कहा, खालिद इब्न वलीद उस जंग के जो थे सिपह सालार थे। खालिद इब्न वलीद से कहा गया कि ये खालिद क्या इतनी बड़े लश्कर से टकराना चाहिए? हमने कभी अपने लश्करों के तादाद के ऊपर जंग नहीं लड़ा, हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए जंग लड़े और अल्लाह रब्बुल आलमीन ही हमारा मदद करेगा। एक काम करो, मदीनतुर रसूल में फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास आप एक अरीसा लिखिए, खत लिखिए कि मदीना से कोई फौज यहां भेज दे, या मुसलमान की फौज की बहुत कमी है। बहरहाल साथियों का इसरार बढ़ा, खालिद इब्न वलीद लेटर भेजते हैं और कासिद जो है इशा के नमाज के वक्त पहुंचता है। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सहाबा इकराम के सामने उस खत को पढ़ते हैं। सहाबा आपस में हैरान और परेशान कि मदीना के अंदर कोई फौज ही नहीं है, सब अलग अलग मुल्कों पे, अलग अलग सरहदों पे चले गए। मदीना के अंदर कोई फौज ही नहीं है,
मदीना के अंदर वो 80-90 साल के बूढ़े मौजूद हैं कि जिनकी कमरें झुक चुकी है, जिन्हें तलवार उठाने की ताकत नहीं। आपस में सहाबा इकराम हैरान और परेशान हो, कहते हैं अमीरुल मोमिनीन, यहाँ तो कोई फौज ही नहीं है, ए अमीरुल मोमिनीन आप किसको भेजोगे? कहा कि ठीक है। ऐसा के बाद ये लेटर सुनते हैं सहाबा इकराम। फजर के बाद फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नमाज पढ़ाते हैं और नमाज पढ़ाने के बाद कहते हैं तुम में से तलहा और जुबैर मौजूद हैं? तलहा और जुबैर कहते हैं कि हाँ अमीरुल मोमिनीन में हाजिर। कहा जाओ तुम अपने जंग के सामानों को पहन लो, जंग के हथियारों को ले लो, मैं तुम्हें खालिद इब्न वलीद के पास भेज रहा हूँ, हिजबुल्लाह के पास भेज रहा हूँ, अल्लाह रब्बुल आलमीन के गिरोह के पास भेज रहा हूँ। साहबा कहते हैं अमीरुल मोमिनीन, वहां दुश्मन 3 लाख दुश्मन है, ये 2 आदमी से क्या होगा? कहा साथियों तुम 2 आदमी को कमतर समझते हो? मैंने अपने नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि जिस जंग के अंदर तलहा और जुबैर मौजूद हैं, पूरी कायनात मिल जाए, तलहा और जुबैर को कोई शिकस्त नहीं दे सकता। बहरहाल जब बुलाया गया, कहा क्यों? तलहा तो वो सहाबी रसूल है कि जब मैदान उहद के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर तीरों की बारिश हो रही थी, तो तलहा अपना सीना लेकर नबी के सामने खड़ा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ये तलहा तू बैठ जा, तुझे लातादार तीर लग चुका है, ये तलहा तू बैठ जा। कहा अल्लाह के रसूल अगर मेरा पूरा सीना तीर से भर जाएगा तो अल्लाह के रसूल मैं अपने पुस्त को पीछे कर दूंगा, लेकिन अल्लाह के रसूल मैं हटूंगा नहीं। इमाम कायनात कहते हैं तलहा तुझसे मोहम्मद राजी है, मोहम्मद का रब तुझसे राजी है, ये तलहा अल्लाह रब्बुल आलमीन तुझे जन्नत देकर है। और जुबैर तो वो सहाबी रसूल थे, वो सहाबी रसूल हैं कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खेमे के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर यहूदियों ने सब खून मारने का इरादा कर लिया, तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि कौन है जो मेरे खेमे की, मेरे घर की हिफाजत करे, जन्नत के अंदर उसके महल की हिफाजत, उसके घर की हिफाजत अल्लाह रब्बुल आलमीन फरिश्तों के जरिए कराए। तो जुबैर उठे और कहते अल्लाह के रसूल मैं आपके खेमे की मैं हिफाजत करूंगा, अल्लाह के रसूल जब तक कोई काफिर मेरे लाश को रोज नहीं देगा, अल्लाह के रसूल तब तक आप तक नहीं पहुंचे। अल्लाह के रसूल ने कहा ये जुबैर तुझसे मोहम्मद राजी, मोहम्मद का रब तुझसे राजी है, ये जुबैर अल्लाह रब्बुल आलमीन तुझे जन्नत देकर। बहरहाल जब ये दोनों सहाबा जंग के अंदर पहुंचते हैं तो खालिद इब्न वलीद उस लेटर को पढ़ते हैं जो फारूक आजम ने लेटर लिखा है। जब उस लेटर को पढ़ते हैं तो खुशी से झूम उठते हैं और कहते हैं कि फारूक आजम ने कोई मामूली शख्स को नहीं भेजा है, उस शख्स को भेजा है कि जिनकी बशारत खुद इमाम कायनात ने दिया है। और हदीस में आता है कि इस कदर जंग लड़े सहाबा इकराम कि 70,000 लाशों को दुश्मन मैदान छोड़कर भाग गए। सहाबा इकराम के अंदर जज्बे जिहाद था। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनकी दुआ किस कदर सुनी कि 70,000 लाशों को छोड़कर दुश्मन भाग गए, क्योंकि उनके अंदर ईमान की ताकत है। आज हम मुसलमान अरबों खरबों के तादाद में हैं, फिर भी मुसलमान जूते खा रहे हैं। इसकी वजह क्या है? हमने जो अल्लाह रब्बुल आलमीन से वादा किया है, हमने अल्लाह रब्बुल आलमीन के उस वादे को तोड़ दिए, तभी तो हम ज़लील व ख़ार रुस्वा हैं। नहीं तो यहाँ सहाबा इकराम किस कदर किए थे। हदीस में आता है कि एक औरत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई, कहती ताहिरनी या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल मुझे पाक कर दो। अल्लाह के रसूल कहते बीवी जाओ गुस्ल करो। कहा अल्लाह के रसूल वो पाकी नहीं, अल्लाह के रसूल मुझसे जिना का सुदूर हो गया है, जिना जैसी गुनाह हो गई है मुझसे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बात को टाल लेते। कहते अल्लाह के रसूल इसका सबूत खुद मेरे पेट में है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि ठीक है जा, जब तक वो बच्चा पैदा नहीं हो जाएगा जब तक तुझे सजा नहीं दी। हैरान हो जाती है जब बच्चा पैदा हो जाता है, बच्चे की विलादत हो जाती है, तब आती है अल्लाह के रसूल के पास, कहते हैं ताहिर नहीं या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल मुझे बात कर। अल्लाह के रसूल कहते हैं बीवी बच्चे को अपने गोद में ले लिए। अल्लाह के रसूल उस बच्चे को अपने गोद में ले लिए
अपने गोद में ले लिए और कहते हैं कि ठीक है, इसे मैदान मक्तल में ले जाओ और इसे पत्थरों से मार मार कर हलाक कर। बच्चा रो रहा है। अल्लाह के रसूल कहते हैं बीबी इधर आओ, जाओ, जब तक ये बेटा रोटी खाने के लायक नहीं हो जाएगा तब तक तुझे सजा नहीं दी जाएगी। बहरहाल वो औरत जाती है। फिर जब बच्चा रोटी खाने के लायक होता है तब आती है अल्लाह के रसूल के पास, कहती है अल्लाह के रसूल मुझे पाक कर दो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बच्चे को अपने गोद में ले गए और उसे सीने के बराबर गड्ढा खोदा गया और उसे वहीं पर गाड़ा गया और पत्थरों से मार मार कर हलाक कर दिया गया। पहला पत्थर खालिद इब्ने वलीद मारते हैं। खालिद इब्ने वलीद जब उसको पत्थर मारते हैं उस औरत को तो उसका सर फटता है, खून का फव्वारा निकलता है और खालिद इब्ने वलीद के कपड़ों पे कुछ खून के छींटे आ जाते हैं। खालिद इब्ने वलीद कहते हैं जानिया बच्चलन का खून नापाक है, मेरे कपड़ों पे आ गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खालिद इब्ने वलीद से 3-4 दिन बात नहीं। हजरत खालिद कहते हैं अल्लाह के रसूल क्या बात है, आप मुझसे बात नहीं कर रहे हो। अल्लाह के रसूल मेरी दुनिया भी बर्बाद हो जाएगी, आखिरत भी बर्बाद हो जाएगी। अल्लाह के रसूल क्या बात है, आप मुझसे बात नहीं करते। अल्लाह के रसूल ने कहा खालिद, उस दिन जब उस औरत को तुम पत्थर मार रहे थे तो तुम उसे क्या कह रहे? अल्लाह के रसूल मैंने यही कहा कि जानिया बच्चलन का खून हमारे कपड़ों पे आ गया, मेरा कपड़ा नापाक हो गया। अल्लाह के रसूल ने कहा कि खालिद तुम उसे जानिया बच्चलन कह रहे हो? वो ऐसी सच्ची तौबा कर कर अल्लाह रब्बुल आलमीन से गई है कि उसके तौबा अगर 70 गुनहगार औरत के ऊपर डाल दिया जाए तो उस औरत के तौबा के वजह से 70 औरत बगैर हिसाब किताब के जन्नत में चले जाएंगे। हज़रत उमर फारूक ने कहा कि अल्लाह के रसूल वो तो जानिया थी। कहा उमर तुमसे जानिया कह रहे हो? वो ऐसी सच्ची तौबा कर कर मरी है अल्लाह रब्बुल आलमीन के बारगाह में कि वैसी तौबा, वैसा तौबा अगर कोई चोर कितना बड़ा डाकू अगर कर ले तो वो भी शख्स बगैर हिसाब किताब के जन्नत में चला जाए। इसी के साथ मैं अपने बातों को खत्म करता हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह जमीन को सलामत को सलामत मुस्तकीम पे चले। अल्लाह हम सब के घर में बीवी बच्चे जितने हैं अल्लाह सबको माफ करने के लिए तौफीक अता फरमा। अल्लाह सबके कारोबार में रोजी रोटी में बरकत अता फरमा। अल्लाह जो बहुत पास है अल्लाह उन्हें नेक और सालिह बेटा अता फरमा। अल्लाह तेरे दरवाजे के मुताबिक और नेक और सालिह बेटा अता फरमा। अल्लाह हम सबके माँ बाप को रहम फरमा। अल्लाह उन्हें जन्नत के दोस्त में अता फरमा। आमीन। बरकत